वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ऑलरेडी हमारा 7th लेक्चर है. इससे पहले ऑलरेडी सिक्स लेक्चर्स हैव बीन ओवर, एंड टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज सिंपल, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. In the last lecture we studied about present perfect tense, and today we are going to learn about past perfect tense, how to convert them into passive voice. Okay, assertive sentence, negative sentence and interrogative sentence we are going to learn. Okay. Past perfect tense. First, let us discuss when do we use past perfect tense. Past perfect tense is used to indicate the actions that occurred in the past of the past. Past of the past, what does it mean? Let me explain the example. फॉर एग्जाम्पल, हम स्टेशन गए, उससे पहले ट्रेन चली गई थी. हम स्टेशन गए, उससे पहले ट्रेन चली गई, तो हम स्टेशन गए वो भी पास्ट है और ट्रेन चली गई थी वो भी पास्ट है, मगर दोनों एक टाइम पर नहीं हुई है. कोई एक एक्शन पहले हुई है और दूसरी बाद में हुई है. कौन सी पहले हुई है? हम स्टेशन गए और ट्रेन चली गई थी उससे भी पहले, पास्ट का भी पास्ट, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस. Okay, what are the identifying words that help us to identify past perfect tense? There are mainly two words, and that is before and after. Okay, generally before and after are used in past perfect tense. What is the sentence formation? It is easier than present perfect tense. In present perfect tense there were two options you have to choose, have and has, but there is only one option, and that is had. Had plus past participle, and in passive voice had plus been plus past participle. In active voice had plus past participle, and in passive voice had plus been plus past participle. Okay. And full sentence formation, you know it very well. Subject plus had plus past participle plus object, and in passive voice subject plus had plus been plus past participle plus, sorry, in passive voice object plus had plus been plus past participle plus by plus subject. That is the full sentence formation. Had plus past participle, had plus been plus past participle. Okay. Now let us learn examples. Okay. Examples. Okay. I had completed homework. I had completed homework before father came. Before father came. पिताजी आए उससे पहले मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था. ओके. So here you can see that I is the subject, had completed is the verb, and homework is the object. So how it would be converted into passive voice? You have to write homework in the beginning. Okay. Homework had been completed. Homework had been completed by me before father came. Before my father came. चलो ऐसा लिख देते हैं, before my father came. ओके, इस तरह से इजी है. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं. फास्ट बुक में से लिखाता हूँ. My brother had taken breakfast. My brother had taken breakfast before they sang. ये जो बिफोर के बाद में जो सेंटेंस लिखा है, बराबर, बिफोर दे सेंग, यू डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस इन देम. Suppose it belongs to simple past tense, then you have to convert them into passive voice. Otherwise only verb is given, then you don't need to do anything with that sentence. Okay. So the answer would be my brother is the subject, had taken is the verb, and breakfast is the object. Okay.
So it would be converted into passive voice like this. You have to begin with breakfast. Breakfast had been taken by my father. Breakfast had been taken by my father before they sang. ओके, इस तरह से. ओके, चलो थोड़े नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस भी देख लेते हैं. द गर्ल हैड नॉट सोल्ड द पेन बिफोर आई वेंट देयर. ओके, नेगेटिव. द गर्ल had not sold her pen before I came. ओके, नॉट लिखा है. ओके, वैसे तो इजी है कि चलो नॉट लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है. मगर वही प्रॉब्लम होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था मैंने आपको, बीन गलत जगह पर रख देते हो आप. ओके, एंड इन द कमेंट्स इन लाइव चैट some students are writing wrong answers. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये जो हर पेन लिखा है वो आपको आगे लिखना है. ओके, इस तरह से होगा. देखिए, हर पेन had not been sold. Her pen had not been sold by the girl. ओके, गलती कर दी. ओके, by the girl before I came. ओके, इस तरह से होगा. तो ये हुआ पैसिव वॉइस. हर पेन हैड नॉट बीन सोल्ड बाय द गर्ल बिफोर आई केम. ओके, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं. हैड ही वार्नेड द टाइगर बिफोर फायरिंग द गन. क्वेश्चन है, had he warned the tiger before firing the gun. Okay, had he warned the tiger before firing the gun. क्या गन फायरिंग करने से पहले उसने टाइगर को वार्न किया था. ओके, तो यहाँ पर देखिए, ही है वो सब्जेक्ट है. ही क्या है, सब्जेक्ट है. बाद में वार्नेड है वो क्या है, वर्ब. और जो किसे वार्न किया था, whom did he warn the tiger. so the tiger is the object. ओके, तो उसको आपको आगे लाना होगा द टाइगर, और बिफोर फायरिंग द गन वो तो वैसे ही लास्ट में लिखना है. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है तो हैड पहले लिखेंगे. हैड द टाइगर be warned. Had the tiger be warned by him. Had the tiger be warned by him. फुल स्टॉप नहीं है अभी. यस, चला गया फुल स्टॉप. Had the tiger be warned by him before firing the gun. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन माना जाएगा. Had the tiger बी लिखा है उसकी जगह पर आएगा बीन. ओके, मैंने बी लिख दिया. सेम मिस्टेक आप मत करना. ओके, नहीं करेंगे आप तो स्टूडेंट है, टीचर्स गलती करते हैं शायद. हैड द टाइगर बीन वार्नेड बाय हिम बिफोर फायरिंग द गन. ओके, चलो दूसरा इक्वेशन करते हैं. What had you read before you appeared for the examination? What had you read before you appear for the examination? What had you read before you appear for the examination? एग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले व्हाट हैड यू रीड, आपने क्या पढ़ा था.
तो इन व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू नो इट वेरी वेल कि ये जो व्हाट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ओके, व्हाट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आएगा, कोई ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए जाने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से आएगा व्हाट हैड बीन रीड बाय यू। व्हाट हैड बीन रीड बाय यू, बाद में जैसे है वैसे अदर वर्ड। बिफोर you appear for the examination. Okay, what had been read by you before you appear for the examination, और क्वेश्चन मार्क करना मत भूलना। ओके, यहाँ चलेगा, इट्स ओके, बट डोंट फॉरगेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। Who had broken the glass? ग्लास किसने तोड़ा? When I went outside. When I went outside. Who had broken the glass when I went outside? जब मैं बाहर गया तो ग्लास किसने तोड़ा? तो इसमें आपको लिखना है, who की जगह पर होगा by whom। by whom had the glass been broken before। समझ में आया? जो who लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखना है? by whom। had सबसे पहले लिखना है because the sentence belongs to interrogative pattern। okay, by whom had, then you have to write the object in the beginning, so by whom had the glass, and don't forget that been is written always before the verb। जो been है verb के पहले ही लिखना है, that means been broken before I went outside। okay, by whom had the glass been broken before I went outside। okay, so that is interrogative sentence, who type sentence। okay, now fourth sentence, which of the team had won the match? which of the team had won the match? कौन सी टीम मैच जीत गई है? ओके, ये थोड़ा नया सेंटेंस आया, which of the team, तो इसमें by which of the team इस तरह से आपको पहले लिख देना है। which of the team had won the match, तो उसका आंसर होगा which of the team लिखा है उसकी जगह पर आपको लिखना है by which of the team। ओके, तो इस तरह से होगा आंसर, by which of the team। ध्यान रखिएगा बराबर, हेड कहाँ पर लिखना है? ओके, पहले लिखना है by which of the team है, और बाद में ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है मैच वो पहले लिखना है, by which of the team had the match, और बाद में लिखना है been won। ओके, by which of the team had the match been won, इस तरह से आंसर होगा, by which of the team had the match been won। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मोस्टली आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन क्वेश्चन। ओके, इन इंट्रोगेटिव में ही आपकी गलती होती है, जहाँ पर नहीं लिखना होता है, जो नहीं लिखना है वो लिख देते हैं, और जो लिखना है वो नहीं लिखते। Had he bought the fruits? Had he bought the fruits? ओके, ही लिखा है, बी जैसा लगता है। ओके, had he bought the fruits, क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए, कोई भी पैसिव है तो डोंट गेट अफ्रेड, उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ निकालिए, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। ही है, बॉट है, ओके, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और जो फ्रूट्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है।
how to convert them into passive voice? Obviously, you have to write the fruits in the beginning, but the sentence belongs to question, interrogative format. So you have to write had in the beginning. So the answer would be like this: had the fruits, had the fruits, had the fruits been bought, had the fruits been bought, और ही का होगा by him, ही का क्या होगा by him, इस तरह से. ओके, तो ये वो क्वेश्चन. बाद में सारे आ गए शायद. चलो एक देख लेते हैं व्हाट वाला. व्हाट न्यूज हैड शी बॉट फ्रॉम द सिटी. ओके, चलो एक प्रेपोजिशंस वाला देख लेते हैं. हु हैड फॉट विथ इंडियंस. Who had fought, who had fought with Indians, who had fought with Indians before independence, before independence. ओके, और क्वेश्चन मार्क लिखना है. Who had fought with Indians before independence. इंडिपेंडेंस से पहले इंडियंस के साथ कौन लड़ा था? फॉट. ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू डू विथ वो इज कन्वर्टेड इनटू बाय वूम. तो आपको लिखना है बाय वूम हैड इंडियंस, बाय वूम हैड इंडियंस बीन फॉट. इसमें ये सेंटेंस मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर विथ में गलती नहीं कर दो, विथ वर्ब के साथ ही लिखना है. बाय वूम हैड इंडियंस बीन फॉट विथ बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस. बाय वूम हैड इंडियंस बीन फॉट विथ बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, तो इसमें रूल आपको याद रखना है कि जब भी कोई इस तरह से प्रेपोजिशंस होता है विथ, ऐसे कोई विथ और विथ फॉर और, तो जहां है वहीं रखना है. वर्ब है तो वर्ब के साथ ही लिखना है. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंडियंस बीन फॉट विथ बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, इस तरह से. ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, आई थिंक इनफ दिस एग्जांपल्स. ओके, चलो आज एक नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस. सबसे पहले मुझे ये बता इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. Imperative sentence, that means order type sentences, that start reading now, open the book, get out of the class. These types of sentences are called imperative sentences. उसमें order भी होता है, advice भी होती है. request take these medicines regularly, that is advice. okay, तो इसमें sentence होते हैं एक request वाले, फिर advice वाले और फिर order वाले. ओके, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ये 3 मेथड कर लेते हैं, रिक्वेस्ट वाली, एडवाइस वाली और ऑर्डर वाली. बाद में दूसरे देखते हैं इन 3 टाइप सेंटेंसेस हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. ओके, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करिए. तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या ऑर्डर है? ओके, एडवाइस है तो इसमें आएगा यू आर रिक्वेस्टेड. इस तरह से स्टार्ट करना है आपको. ओके, ये नहीं आया पूरा. यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली.
ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, ऑर्डर वाला सेंटेंस। गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। ओके, ये ऑर्डर है तो बहुत इजी है, यू आर रिक्वेस्टेड है, उसकी जगह पर लिखना है आपको यू आर ऑर्डर। ओके, इस तरह से देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई वे, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ माई वे। ओके, इस तरह से यू आर ऑर्डर से स्टार्ट करना है, टू लगाना है, बाद में जैसे सेंटेंस है उसी तरह से आपको लिख देना है। रिक्वेस्ट आ गया, ऑर्डर आ गया, अभी एडवाइस वाली देख ले, एडवाइस आ गई, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ओके, तो इसमें क्या आएगा, प्लीज की जगह पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह से होगा। ओके, तो ये इंपेरेटिव 3 टाइप सेंटेंस हमने पढ़े, कौन से? सबसे पहले पढ़े रिक्वेस्ट वाले। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया ना मैंने, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो वो रिक्वेस्ट नहीं थी, सॉरी, वो एडवाइस थी, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज रेगुलर, गेट आउट ऑफ माई वे ऑर्डर था, और लास्ट में जो प्लीज वाला था वो थी रिक्वेस्ट। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा भी दूसरी एक मेथड है, वो है लेट वाली मेथड। ओके, उसमें किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब ओपन। ओके, बाद में जो भी होता है सब्जेक्ट नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इसमें किस तरह से होगा, इसमें सबसे पहले देखिए, एक सेंटेंस में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले लेट लिखना है आपको। ओके, बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ढूंढ निकाले। जनरली सेंटेंस में वर्ब के बाद ही होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरह से ही होता है। तो बाद में आपको लिखना है लेट द विंडो। क्या लिखना है? लेट द विंडो, और बाद में लिखना है बी ओपनड। ओके, लेट द विंडो बी ओपनड, इस तरह से। तो दूसरा बुक में से कराता हूं मैं आपको। नेवर वेस्ट टाइम, नेवर वेस्ट टाइम, इस तरह से। ओके, उसमें से क्या होगा बोलो? लेट टाइम नेवर, और वेस्ट है उसकी जगह पर होगा बी वेस्टेड। ओके, लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड। ओके, ये अब क्या वेस्ट करना है, नहीं करना है। ओके, व्हाट और वुम से जब वर्ब को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर वेस्ट को क्वेश्चन पूछा तो आंसर मिला टाइम, तो टाइम सबसे पहले लिख दिया, लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड। ओके ओके, तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चलो अभी और एग्जांपल्स देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसमें और भी है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंपेरेटिव है। ओके, तो देखो उसमें ऊपर मैंने 3 मेथड पढ़ाई ना, आपने रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस वाली। तो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, डोंट गो। अब कहीं गांव पर गए हो और वहां पर कोई
वेल है तो आपको आपके पेरेंट्स एल्डर्स क्या एडवाइस देंगे, डोंट गो नियर दैट वेल, वो वेल के नजदीक मत जाइए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, अगर इस तरह से लिखा है डोंट, ओके, तो आप लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन, इस तरह से पहले बराबर देखो, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन लिखा उसका मीनिंग ही होता है नॉट अलाउड, फॉरबिडन का मीनिंग होता है नॉट अलाउड, तो फॉरबिडन लिखा देन यू डोंट नीड टू राइट डू नॉट, ऐसा लिखने की आपको नहीं, यू डोंट नीड टू राइट वर्ड्स लाइक डू और नॉट, यू आर फॉरबिडन टू गो नियर दैट वेल, यू आर फॉरबिडन टू गो नियर द वेल। ओके, तो इस तरह से ये आंसर होगा। समझ रहे हो आप, अभी और एग्जांपल्स करने हैं बिकॉज एक्यूरेसी नीड्स प्रैक्टिस। ओके, मैथ्स आपको 100% आता है मगर प्रैक्टिस नहीं है, देन यू विल मेक मिस्टेक और यू विल फॉरगेट द मेथड्स और फॉर्मूलाज। ओके, तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, पहला सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है ऊपर, लीव द रूम एट वंस, थोड़े छोटे फॉन्ट्स रखे, ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। ओके, सो डू कॉम्प्रोमाइज विद फॉन्ट्स। लीव द रूम एट वंस, लीव द रूम एट वंस, तो उसका आंसर कैसे लिखा है देखो, यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस, यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस। सेकंड देखिए, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का ग्लास लाइए, तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर लिखा है मगर आप रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, अगर किसी से पानी चाहिए तो ऑर्डर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करनी होती है। ओके, और द सेम सेंटेंस यू कैन ऑल्सो यूज द लेट टाइप ऑफ मेथड, लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी, और जो ऊपर रूम वाला सेंटेंस था, यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम, वो भी इस तरह से लिख सकते हो कि लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस। ओके, थर्ड सेंटेंस, गो टू मार्केट इमीडिएटली, obviously it is clearly order, you are ordered to go to market immediately। प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट है बेटा। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज टेक पिटी ऑन मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक पिटी ऑन मी, यहाँ टू भूल गए हैं। ओके, टू लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक पिटी ऑन मी, पिटी मीन्स काइंडनेस। प्लीज कीप दिस बुक ऑन द टेबल, रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दिस बुक ऑन द टेबल। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, बेयर फुटेड मतलब विदाउट शूज, विदाउट चप्पल्स। ओके, बेयर फुटेड, खुले पग से मत घूमिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यू आर फॉरबिडन, वो समझा है ना मैंने, डू नॉट से स्टार्ट होता है तो आप फॉरबिडन लिखिए, यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुटेड। जो आपको होमवर्क में लिखना है, ओके, जो मैं सेंटेंस देता हूँ आपको कहीं से भी लिखिए तो उसमें ये सब आप लिख सकते हो। ओके, दैट वुड बी हेल्पफुल, आपको एक्सरसाइज ढूंढने के लिए नहीं जाना होगा। यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुटेड। और इट इज टाइम वाली मेथड हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़नी। ओके, यहाँ पर देखिए, डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी, तो उसका होगा यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। प्लीज डू नॉट ईट रो फ्रूट, रो फ्रूट्स, रो मतलब कच्चे फ्रूट्स मत खाइए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट रो फ्रूट। ओके, ओके, चलो अभी ये देखिए, ये जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया वही है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी इसलिए है क्योंकि जिससे आप भूल मत जाओ, ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़े हो तो आपको याद भी रहेगा। ओके, देखो पहला, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, तो उसका क्या होगा, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, लेट वाली मेथड। ओके, फिनिश द टास्क, लेट द टास्क बी फिनिश, जो दूसरी मेथड पढ़ाई मैंने लेट वाली वो। डू नॉट वेस्ट द टाइम, डू नॉट वेस्ट द टाइम, तो उसमें होगा लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। क्लोज द डोर, तो उसका होगा लेट द डोर बी क्लोज्ड,
wash the shirt, let the shirt be washed. Repair your camera, let your camera be repaired. Open the window, let the window be open. Help the children, let the children be helped. Throw the ball, let the ball be thrown. Collect the nice books, let nice books be collected. और आज MCQ वाली टेस्ट एक क्लास में मैं नहीं ले रहा हूँ, वो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स की लिंक है। ओके, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स की लिंक में रखता हूँ। ओके, अगर भूल नहीं गया तो रखूँगा मैं, तो उस पर आप क्लिक करके अपना पेपर सबमिट करवा दीजिए मुझे। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो MCQ में क्या होता है, कुछ 4 या 5 स्टूडेंट्स ही आंसर देते हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो लाइव लेक्चर्स में आते ही नहीं है। ओके, कोई रीज़न होगा, स्कूल का लेक्चर्स होगा, होमवर्क होगा, कोई रीज़न होगा, नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ओके। तो इसलिए आज मैं यहीं पर लिंक रख देता हूँ, जिससे आपको पर्टिकुलर अपना इवेल्युएशन भी हो जाएगा कि सर ने आज जो पढ़ाया परफेक्ट पास्ट टेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें हम कितना समझे। ओके, कितनी हमारी कैपेसिटी है मार्क्स लाने की। इफ़ यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100%, दैट मीन्स 20 सेंटेंस और पूरे 20 लाते हो, दैट इज़ वेरी गुड। देखते हैं कितने आते हैं। तो ये लिंक पर क्लिक करके आप अपना पेपर सबमिट करवाओ। ओके, शाम तक लिंक खुली है। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज वी आर फिनिशिंग आवर लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।